was women were there on the left and the right is there to take you to a larger canvas of women issues pertaining to gender equality, pertaining to identity, pertaining to exploitation, etc., which an ordinary woman undergoes in her life, especially the poor ones. What the team has done, they have put together, they have stitched together almost about 10 poems. And mind you, these poems are written by the best of the best minds in this part of the country. So you have Raghubir Sahai, a great poet who comes from Uttar Pradesh. You have Nagarjun, the legendary Nagarjun, coming from Bihar. And you have a big local star. Her name is Nirmala Patul. So their poems have been put together and they have beautifully stitched them in a manner that they look seamless. And they take you through a range of issues. It talks about a father's anxiety of a girl child while she's growing. It talks about the parental disapproval of the love choice that the girl makes when she's grown up a little. It talks about the husband that she never chooses, whom she has never chosen on her own. It talks about the domestic violence that she had to undergo after marriage. It talks about the desertion that she had to suffer. And it talks about the commodification of her body, which eventually she pushed into. It talks about the commercial exploitation of her plight by the television media, by the media in general. And therefore, the canvas, I said, is quite big. The performance is, Priyanka and the team is quite lucky. And luck is on your side. Mike has come back in full bloom. So give them a big hand once again to just boost up their mood. By the time they end, let me tell you, it doesn't portray a pessimistic picture. It leaves behind a lot of questions in mind. And when you move out, you will be carrying those questions, and that's the beautiful part of the play. Without wasting much of time now, let me request the team and wish all of them all the best. Thank you. Thank you, sir. मैं अशरफ अली फ्रॉम अनुरागना थिएटर ग्रुप। मेरी टीम के मेंबर सर्वेश दीक्षित, सौरभ त्रिपाठी, दीप्ति, प्रियंका, गायत्री, अक्षय एंड राम। तो हम शुरू करते हैं। औरत, कविता मंचन, रघुवीर सहाय, निर्मला पुतुल और नागार्जुन रखी हैं। जो हम करेंगे उसका इमेज यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्या आप जानते हैं, पुरुष से भिन्न एक स्त्री का एकांत, घर, प्रेम और जाति से अलग एक स्त्री की अपनी जमीन, सदियों से अपना घर तलाशती एक बेचैन स्त्री, स्वयं को स्थापित और निर्वासित करती एक बेचैन स्त्री, तन के भूगोल से परे एक स्त्री के मन की गांठ को खोलकर कभी पढ़ा है आपने उसके भीतर का खोलता इतिहास? उसके अंदर वंश बीज बोते समय कभी महसूस किया है आपने उसकी फैलती हुई जड़ों को अपने भीतर? अगर नहीं, छपी हुई औरत के चेहरे की सिमरनें किसी एक परिवार की लंबी मुश्किलों की आड़ी सतह है। उनकी लिखावट कुछ अलग दूसरों से है, क्योंकि परिवार के पुरखों ने अलग अलग भाषाएं लिखी हैं।
नुकसान पहुंचाने वाली तमाम ख्वाहिशें मर चुकी होती हैं। वो खुद को जिंदा रखने के लिए ईश्वर से शक्ति की प्रार्थना करती है। शक्ति दो, बल दो, हे पिता, जब तुमके हाथ से मन थकने आए, पैरों में खुली किसी अपनी चाल छटपटाए, इतना सौजन्य दो कि दूसरों के भक्ष बिस्तर घर तक पहुंचा आए। कोई सी भीख मैली न हो, ऐसी को पिता, शक्ति दो, बल दो, हे पिता। एक पिता की चिंता अपनी पुत्री को लेकर, जब वो बड़ी होगी तब क्या होगा, जब उसकी शादी होगी तब क्या होगा। अपने चमकीले दांतों की तरह शांत धवल है वो, जब वो हंसती है फेनिल दूध सी निश्चल हंसी, तब झरझरा कर बहते हैं पहाड़ों की कोख में मीठे पानी के सोते। जब वो कुछ कहती है, उसकी आवाज में एक कोई चीज मुझे एकाएक और की आवाज लगती है, जो अपमान बड़े होने पर सहेगी। वो बड़ी होगी, डरी और डुबली रही, और मैं न होऊंगा। वो कविता, वो साहस न होगा, वो किताबें, वो उम्मीदें न होंगी जो उसके बचपन में थी। एक और ही युग होगा जिसमें ताकत ही ताकत होगी और चीख न होगी। लंबी और तगड़ी बेधड़क लड़कियां, धीरज की पुत्रियां, अपने साहबों को सलाम ठोकते मुसाहबों को ब्याह कर आ रही होंगी, जा रही होंगी। वो बड़ी लालच में देखती होगी एक कोठरी होगी, उसमें एक गाना होगा जो खुद गाया नहीं होगा किसी ने, कैदी से छीनकर उसके गाने का हक दे दिया गया होगा। वो गाना कि जब तुम चाहो तब नहीं, जब वो बचे तब सुनो। बार बार एक अन्याय के बाद बज उठता वो से सुनती होगी, मेरी याद करती, क्योंकि कभी कभी हम साथ साथ गाया और मैं उनके आसपास एक पाला होगा। वो उसे देखेगी और अपने बचपन की याद आएगी। क्या उन दिनों अपने बचपन के भविष्य की इच्छा कोई करता होगा? और वो भी नहीं करेगी। जोड़े में खोसकर हरी पीली पत्तियां, जब वो चढ़ती है बस में कतार पर हो, तब मांगन की धाक पर जैसे आ जाता है असमय पसंद। संग संग पढ़ते थे, अक्सर एक दूजे से लड़ते थे।
दोनों की दोस्ती पुरानी थी, शायद ये एक प्रेम कहानी थी। लेकिन एक सुबह ऐसी आई जो संग अपने तूफान लाई, हाथों से हाथ छूट गया और दोनों का सपना उठ गया। दुनिया अपने ढंगे पर ही चलती है, अपनी परंपराओं पर ही तो आगे बढ़ती है। वे परंपराएं जो बजबजाती नालियों की तरफ बदबू मार रही हैं।
कुछ मर्द अपनी औरत को छोड़कर चले जाते हैं, फिर लौट कर नहीं आते, लेकिन कमला का पति अपनी अंतिम यात्रा पर जाने से पहले लौट कर आ गया। मोहन बीमार पड़ा। कमला को लगा कि सारी दुनिया को छोड़ वो उसके पास आ गया। 2 दिन ऐसा ही रहा। फिर मोहन रोग के एकांत के भीतर कहीं दूर चला। एक औरत को अकेले रह पाना आसान नहीं है। उसे ढकेल दिया जाता है जिस्म के बाजार में, जहां उसकी जैसी बहुत सारी औरतें हंसती सिसकती अपनी जिंदगी को बांट रही होती हैं। मर्दों ने कहा औरतों की बीमारी। वो बुढ़िया 20 जनों के औरत पर की कच्ची बन जाकर के खटिया पर पहुंच रही। साल भर चल बसी, औरतें उठी, घर धोया, मान गए बाहर अर्थी लेकर। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य, राम नाम सत्य, राम नाम सत्य, राम नाम सत्य। अचानक हमारा समाज या हमारे समाज का एक खास वर्ग जाग उठता है और उस कोठरी से उन औरतों को आजाद करा लिया जाता है। फिर उस बिकी हुई औरत को दोबारा से बेचने के लिए मीडिया के लोग उसे घेर लेते हैं और तरह तरह के सवाल करके उसे परेशान करना शुरू कर देते हैं। और उससे पूछेंगे तो आप पीड़ित हैं, तो आप क्यों पीड़ित हैं? आपका पीड़ित होना आपको दुख देता है? सोचिए, बताइए, आपको पीड़ित होकर कैसा लगता है? कैसा लगता है आपको?
सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम प्रस्तुत रहेंगे। धन्यवाद। एक स्त्री होने की अपनी मर्यादा होती, एक सीमा होती, एक सहन शक्ति होती। मीठा बोलना चाहिए, लाख मनवाहट के बावजूद। पर ये कैसे संभव है कि हम तुम्हारे बने बनाए फ्रेम में ढल जाए मन माफी तुम्हारे ही साथे में। कैसे संभव है कि हम तुम्हारी ही तरह सोचे सब कुछ, लेकिन तुम्हारी ही नजर से दुनिया को और तुम्हारे कारोबार को। हक की बात मत करो तुम इन गूंगे बहरों की बस्ती में। अरे पंचायत में डायन करार दे जाओगे तुम। जातीय टोटम के बहाने घर से निकाल फेंकी जाओगे तुम। किसे पुकार रही हो तुम? कहां गुहार लगा रहे हो तुम इन गूंगे बहरों की बस्ती में? ये क्या है? ये क्या है जो इस झूठे में करता है? ये क्या है जो इस झूठे में करता है? ये तीर कहां से रोज निकल आती है? इस दुख को रोज समझना क्यों पड़ता है? अपनी ऐसी याद तुम्हारी आई, वैसी ही भरना है, वैसी ही देखना। इस बात पर कल से है हम दुखदारी, निर्भर हो गए अपने सारे पैसे, सब चला गया खुद बटे खाते में। रह गए हम तुम वैसे के वैसे, रह गए हम तुम वैसे के वैसे। मुश्किल में हमने आगे क्या सीखा? ये कष्ट उठाने का कोई मतलब है? चाहे केवल अत्याचार किसी का। ये तो है ही, तब क्यों कहते हैं? क्यों है? और ये हम ही क्यों कहते हैं? हम क्यों तकलीफ उठाते जाए? दुख देने वाले तुम थे और हमारे दुख के गौरव की करता है। ये है अभिजात तरीके की मक्कारी। इसमें सब दुख है, केवल यही नहीं है, अपमान, अकेलापन, वादा, बीमारी। हमसे हैं इसलिए कि हम सच्चे हैं, हम जो करते हैं बोले जाते हैं। वे झूठे हैं लेकिन सबसे अच्छे हैं, वे झूठे हैं लेकिन सबसे अच्छे हैं। पर नहीं हमें भी राह दिख पड़ती है, चलने की पीड़ा कब होती जाती है। जैसे जैसे ये पीड़ और बढ़ती है, हमने ये देखा दर्द बहुत भारी है, आवश्यक भी है जीवन जीने का है। ये नहीं कि हमारी उससे कुछ अपनी यारी है। हमने ये देखी अपनी नहीं जाती है थोड़ी बहुत
emerging brand, secondary brand in the country called IHT. Heartfully, big hands to IHT, big hands to the team, Delhi, team Ranchi, and the biggest hands to the performers here. Priyanka deserves a special applause because almost for about a month she was intensely interacting with Professor Alak Sharma ji to stitch this play. And as I mentioned to you, these are different poets and their poems apparently unrelated to each other, but seemingly interrelated with each other, were put together. And the whole idea was to make it authentic, make it relevant, and make it contextual. So, ladies and gentlemen, we must once again give a big hand to IST for their outstanding research, for their serious research, and for their incredible research, which leads to a feel that whatever they do authentic. Congratulations, sir. Now may I request Priyanka and then the director of the play to say a few words. So, thank you very much. Thank you for all your patience. I hope you've been able to live up to your expectations, especially Alak sir's expectations. If sir is around. Without your blessings, this would not have been possible. I thank this entire team. They are my old theatre friends who have come back. I have come back on stage after 14 years. So we needed all your blessings and all your help. But there are few names without whom this would not have been possible. This young boy, the slides that you saw, one of our very young researchers, Nikita Sharma. Of the poems. And of course, Alak sir, I would request you to kindly come here. Now we will not hold you. It is time for dinner. Thank you again, sir. Thank you for handling this. Yes, please. May I now? मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। हम लोग यहाँ पर आए, हमने शो किया। लगभग 12 साल बाद प्रियंका ने जब फोन किया कि ये प्ले करना है और आज मैं आ गया, तो मुझे अच्छा लगा। हम लोगों ने 10 या 12 दिन की रिहर्सल करी और उसके बाद हमने ये शो किया। तो हमारी मेहनत, प्रियंका की मेहनत, इसकी सोच, मैंने उसको बनाया। सर, पूरी टीम, हमारे सर साथ दिया इन्होंने, हमें अच्छा लगा। आप लोगों को पसंद है, यही हमारी टीम। बहुत बहुत